Well, good afternoon, everyone, and I'm very much happy to be on the screen once again. Dear student, in this time you are having plenty of hours at home to spend. But dear student, don't be passive during this time. Be active. Explore all the things that are good for you. Avoid naughty things and continue your studies continue your studies properly at home. My dear student, we have completed our grammar portion from chapter 3, and today we are going to start our chapter 4. Now, whatever that is left in chapter 3 or chapter 2 or chapter 1, we'll be completing that parts afterwards when the school reopens. But dear student, don't take it easily. Be careful, and it is my strict command to all of you that you should be active in your activities. You have to prepare your notes properly, and when the school reopens, that will be checked systematically one by one. And most probably I have seen very less number of students submitting their homeworks, submitting their activities. Dear student, I request all of you to join the class and submit the activities so that I may see it and know how much you are improving, and I can remark your works. Now today we are going to start our last chapter from unit 1 childhood unit जो childhood था उसका last chapter we are going to study today, and as before we will be studying it in part A and part B so that it will be not too burden for all of you to understand it or to remember the difficult words. Dear student, first of all, I like to explain the box content and the heading of chapter 4, that is the first public speech. Speech, everyone wants to make a speech. That doesn't mean that everyone wants it, but the speech must be very clear, that should be understandable by others, the listeners, so that the listener may know what you are going to say, what you wanted to say. A speech. In a speech, your pronunciation of the words should be very clear. The sentence you are speaking should be clear. The main point of the speech you should highlight and give more importance towards it. In this way, you can prepare a good speech before the public. So, let us see the book, what it is, what we can find out about the first public speech. I'll just like to say, tell you in short. It is about a small boy, Nani, who has the habit of scammering. स्कैमरिंग का मतलब होता है हटलाना, कोई भी वर्ड बोलते समय हकलाना, वर्ड बोलते समय halting, रुक रुक कर बोलना, हकलाना. You may understand it properly. But his great effort
his great determination made him success to give out the very effective speech before the mass of people. ये बच्चे को कोशिश, एक उसका अंदर का डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता, संकल्प, उसका ये संकल्प जो था बहुत पावरफुल था. जो उसका हकलाना जो आदत था, उसके बावजूद भी दिस बॉय वॉज एबल टू विन द हार्ट ऑफ द मास ऑफ पीपल. एक क्राउड ऑफ पीपल का हाथ, जो हृदय जीतने में वो सफल हो गया अपने स्पीच से. नाउ लेट अस गो थ्रू द बुक. Let me first read out what is written in the inside the box. The first public speech. These are all the paragraph that we are going to learn in part A. Now, let us see. Let us see what is there in the box. The first public speech given below is an excerpt from the story A Handful of Almonds. Read it and find out how Nani Palkhiwala, an 11-year-old boy who stammered badly, became one of the best speakers of our times. As I have to give you the short clearance about the story. नानी पालखीवाला, जिसका एक हकलाने का आदत था, लेकिन ये हकलाने के आदत के बावजूद भी ये क्या था, उसके अंदर में दृढ़ संकल्प था कि मैं स्पीच अच्छा दूंगा. तो वो सक्सेस भी हुआ उसके ऊपर में, वो काम के ऊपर में. एंड दिस इज़ द शॉर्ट स्टोरी एक्सट्रैक्टेड, निकालना. अ हैंडफुल ऑफ आलमंड. दिस इज़ अ बुक, होल बुक. And from that book, the first public speech, it has been extracted. You can find out the books and you can read it so that you may get more information. Now, let us go through paragraph by paragraph. All those who want to participate in the elocution competition may please raise their hands, the teacher announced. यहाँ elocution का मतलब होता है to speak clearly. Speech, you can say it, elocution competition means speech competition, where you have to use the correct word, meaningful sentences to win द पीपल्स अट्रैक्शन. दूसरे का मन जीतने के लिए हम लोगों को अच्छा बोलना, ये एक टैलेंट है. सो ये इलोक्यूशन वी मस्ट हैव टू डू एवरी टाइम so that our speeches, our way of talking, speaking may be good. So it is also good process of developing English language elocution. Now टीचर ने एक अनाउंस किया सबको कि किस किस को इलोक्यूशन स्पीच में भाग लेना है, स्पीच कंपटीशन में भाग लेना है. यू हैव टू रेज योर हैंड, आप सबको हाथ खड़ा करना है. तो सब ने वहाँ पे मोरओवर एवरीवन. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Several hands shot up, and among them was Nani's. The teacher began taking down their names, and when he came to Nani, he stopped. Are you sure you want to do it, Nani? He asked. He sounded doubtful. Now, when the teacher announced about the speech competition, everyone in the class, they raised their hand. Moreover, almost all the students raised their hand. So among them there was a boy, Nani also raised his hand. Now it was the time when the teacher started taking their names in his register, in his copy. So when he came up to Nani,
जब वो नानी के सामने आया, नानी का नाम लिखने वाला, तो उस टाइम वो थोड़ा रुका, स्टॉप, और उसने प्रश्न करना शुरू किया, क्वेश्चनिंग। अरे नानी, आर यू श्योर यू वांट टू टेक द पार्ट? आपको भाग लेना है? क्योंकि टीचर को डाउट हो रहा था। यहाँ पे एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, शी हैड अ स्टैमरिंग हैबिट, हकलाने का आदत था। तो टीचर को भी ये मालूम था, होल क्लास को मालूम था ये हकलाने का जो आदत है, हकलाना। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव द क्लियर स्पीच टू ऑल। सो यहाँ पे टीचर को डाउट हो रहा था, शंका लग रहा था, और उसने पूछा, क्या तुम भी इस कंपटीशन में भाग ले रहे हो? तो लेट अस गो टू द अनदर पैराग्राफ। यस सर, यहाँ पर भी ये हकला रही है, सॉरी हकला रहा है। ही इज़ स्टैमरिंग हियर ऑल्सो। यस कहने में देखिए कितना हकला रहा है। यस सर, आई डू वांट टू ट्राई। यहाँ पर भी वो हकला रहा है, जो एक सेंटेंस बताने के लिए। उसने कहा, हाँ सर, मुझे एक कोशिश करने दीजिए। उसने रिप्लाई किया। There were sniggers from behind. He colored but stuck to his decision. Now, stuck to his decision. ये जो आदत है, stuck to his decision, ये जो हम लोगों ने ये सेंटेंस पढ़ा है, सॉरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये जो stuck to his decision, हम लोग ये पार्ट ऑफ सेंटेंस को बहुत दिमाग में रखना है। ना यहाँ पे जब ये रिप्लाई सुना टीचर को, उसने रिप्लाई दिया मुझे ट्राई करना है, तो यहाँ पे स्निगर्स का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक करना। ये क्लासरूम में होता है, कोई स्टूडेंट को खड़े किया और मैंने टीचर ने कुछ पूछा तो वो गलत जवाब दिया, तो बाकी का जो लोग क्या होता है, वो छुप के आता, वह आहिस्ता से उसका मजाक उड़ाता है। दैट इज़ कॉल्ड द स्निगर। नाउ स्निगर्स मतलब द स्टूडेंट्स, the remaining students except Nani, they were making fun of her, and because they knew her habit of stammering. Now इसके रिजल्ट में क्या हुआ, ही कलर्ड बट स्टक टू हिज डिसीजन। नानी को गुस्सा तो आया था, लेकिन उसका डिसीजन तो जो था, स्टक टू हिज डिसीजन, उसका जो निर्णय था उस पर वो अड़िग रहा। सो वी मस्ट बी, हम लोग भी सभी जो डिसीज़न लेते हैं, मुझे करना है उसको, तो हम लोगों को कोई उसके क्विट अप नहीं करना है, लेफ़्ट नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं। हम लोगों को उसको स्टक टू द डिसीजन, हम लोगों को अड़िग रहना, अड़िग उसके ऊपर में। हाँ, मैं कंप्लीट करूँगा तो करूँगा, आई कैन डू इट इन एनी हाउ, इन एनी मीन्स, बाय एनी हुक और क्रुक, आई विल डू इट। दैट शुड बी द एक्शन, अथवा दैट शुड बी द वे टू कंप्लीट द वर्क। हम लोग ये निर्णय जो हम लोग डिसीजन पे अड़िग रहता है, तो हम लोगों का काम कंप्लीट करने में ये मदद होता है। नाउ 11-year-old Nani stammered badly and often had to repeat a word many times before he could get it right. It was definitely brave of him to take part in an elocution competition, no less. Now here, यहाँ पर हम लोग जो आगे इसका डिस्कशन किया है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, वही इन्फॉर्मेशन है। ये नानी 11-year-old का था, उसका हैबिट था स्टैमरिंग। वो बैडली, वो एकदम बुरी तरह से हकलाते थे। ही यूज्ड टू रिपीट द वर्ड्स अगेन एंड अगेन। To say a word properly, he has to repeat it again and again. लेकिन ये सब बावजूद भी स्पीच कंपटीशन में भाग लेना, to talk before the mass of people, to talk before the crowd of people, it was brave of Nani to have that decision. ये डिसीज़न लेना उसके लिए छोटी बात नहीं था, बहुत बड़ा बात था। उसको इसके बदले में उसको लज्जित भी होना पड़ता था। But he didn't bother about it. He finalized his decision and he stuck to his decision. अपने निर्णय पे वो अड़िग रहा। Now let us move to another part. The teacher asked again, Nani,
you have to speak for about 5 minutes. Would you be able to? टीचर ने फिर, क्योंकि टीचर आर वेल विशर फॉर एवरीवन, फॉर एवरी वन ऑफ हिज पीपल. उसको मालूम था ये बच्चे हकलाता है तो बोलने में बहुत तकलीफ होगा. सो द टीचर डिडंट वांट हिम टू फील ashamed बिफोर द मास ऑफ पीपल. सो उसने फिर पूछा तुम्हें पक्का भाग ही लेना है, क्योंकि इस भाग में तुम्हें 5 मिनट्स के लिए बोलना है कंटिन्यूस, एंड तुम कर सकते हो ये. यहाँ पे एक टीचर बच्चे को डाउटफुली देख रहा है. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू द इन आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. This time he nodded his head. The fact that it was going to be extempore excited him more than anything else. He could come up with the best ideas and arguments on any subject at a moment's notice. His brain worked fast and collated every bit of information into a perfect presentation. He looked steadily at his teacher. He had decided he would take part in the competition, and he would no matter what. Now, dear student, let us complete the paragraph. He stuck his chin out as he started straight ahead. He was as proud as he was stubborn. Now, we have a word here, just like extempore. Spoken or done, or to write विदाउट एनी प्रिपरेशन. अब एक यहाँ पे जो स्पीच कंपटीशन था, इसका प्रीवियस नोटिस नहीं दिया जाए. कोई सब्जेक्ट का हेडिंग अथवा इस विषय में बोलना है तुमको, ये नहीं कहेगा. इट वाज द पार्टिसिपेंट वी कैन चूज द टॉपिक एंड दे कैन स्पीक एज दे वांट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक व्हाट दे हैव चूज. नाउ यहाँ पर भी दिस टाइम ही नोडेड हिज हेड. जब टीचर ने ये कहा तो फिर भी उसने क्या किया, अपना सिर हिला लिया. टीचर ने क्या पूछा था कि वुड यू बी एबल टू, तुम कर सकते हो, तो उसने कर सकता हूँ करके उसने नोट किया, अपना हेड को हिलाया. द फैक्ट इट वॉज गोइंग टू बी एक्सटेम्पोरी एक्साइटेड हिम मोर देन एनीथिंग एल्स. ये यहाँ पे कोई टॉपिक्स देकर बोलने के लिए नहीं कह रहा था, क्योंकि अगर ऐसा करता तो उसको प्रिपेयर करना पड़ता वही टॉपिक्स के बारे में, या ही हैज़ टू फाइंड डिफरेंट थिंग्स. लेकिन यहाँ पे एक क्लियर वे था कि जो मुझे अच्छी तरह से आता है वो मैं बोल सकता हूँ. सो ही वॉज एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो. नानी यहाँ पे एक्साइटेड होने का कारण भी वही था, क्योंकि टॉपिक्स खुद चूज कर सकते थे. सो अपना टॉपिक्स में बोलना नानी को यहाँ पे अट्रैक्शन कर रहा था. He could come up with the best ideas and arguments on any subjects at a moment's notice. अब यहाँ पे नानी के पास में he can come with different ideas अथवा एन आर्ग्यूमेंट्स, वो बहस भी कर सकता था, और आइडियाज़, योजना, प्लान भी बना सकते थे. मैं ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, और उसके ऊपर में मैं ये बहस करूँगा. तो वो उसको इस प्रकार से इस इलोक्यूशन में पार्ट लेने में बहुत एक्साइट हो रहा था. His brain worked fast and collated every bit of information into a perfect presentation. अब ये सब जो हो रहा था, जो यहाँ पे इलोक्यूशन के बारे में जो हो रहा था, उसका माइंड इतना एक्टिव था कि उसने निर्णय जो लिया था, इट वाज वेरी फास्ट
एंड हिज ब्रेन वॉज वर्किंग वेरी फास्ट. हाँ मैं ये करूँगा, और उसके बारे में उसने सोच भी लिया झट से. ही हैड अ क्विक डिसीजन, एंड आई विल स्पीक दिस, एंड आई हैव दिस आइडिया फॉर दैट, एंड आई विल आर्ग्यू फॉर दिस पॉइंट. मैं ये चीज़ में बहस करूँगा. सो एवरीथिंग वॉज वेल प्रिपेयर्ड इन हिज माइंड, in Nani's mind, and collated every bit of information into a perfect presentation. He looked steadily at his teacher. He had decided he would take part in the competition and he would. यही उसका जो मेकअप माइंड में कर रहा था एकदम उत्साहपूर्वक, अबाउट द टॉपिक्स आई विल स्पीक ऑन. ये टॉपिक के बारे में वो इन्फॉर्मेशन अंदर ही अंदर कलेक्ट कर रहा था. So at that time he looked steadily at his teacher. टीचर को भी कंटिन्यूस वो देख रहा था. steadily मतलब कंटिन्यूस घूरता रहना था, देखता रहना. और उसने कहा एंड उसने ये निर्णय ले ही भी लिया कि वो कंपटीशन में भाग लेंगे, चाहे इसका परिणाम जो भी हो. नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे मुझे लज्जित होना हो या मुझे सबका तालियां मिलना हो, लेकिन मुझे लेना है. आई हैव टू एक्सपीरियंस इट, अनुभव लेना है. नाउ लेट अस गो. He stuck his chin out as he started straight ahead. He was as proud as he was stubborn. Stubborn का मतलब होता है जिद्दी. ये चीज़ जो था, टीचर ने पूछा तुम भाग लेना है, and the students all were making fun of him, even though he didn't give up, अथवा he didn't find any way to quit that competition. So he was stubborn, अथवा वो एक अपना डिसीजन पे जिद करने लग गया. He was feeling proud also, घमंड भी लगने लगा. अरे बाप रे मैं भाग लूँगा. एक होता है बच्चे में, एक जब स्टूडेंट में जो किसी को कोई काम दे टीचर, तो बच्चे में एक उत्साह आता है. दे हैव दैट इफेक्टिव पार्ट टू डू दैट वर्क, और दे wanted to show that work in their own way, how they can present it before the teacher. टीचर के आगे जब टीचर कहेगा कि तुम्हें एक कोई भी टॉपिक्स चूज करके ऐसे लिखो, तो स्टूडेंट में ये आ जाता है दिमाग में कि हाँ वो कोई भी चूज कर सकता है, लेकिन मैं कहूँगा तुम्हें डिसिप्लिन पे लिखना है, तो यू हैव टू स्टिक ओवर द हेडिंग, ओवर द टॉपिक, एंड यू हैव टू राइट. दैट मीन्स यू आर बाउंडेड टू राइट अबाउट डिसिप्लिन. लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर था कि द स्टूडेंट कैन चूज द टॉपिक. सो द stammering boy Nani, he was willing to participate in the elocution speech competition, and he was happy to, and he was feeling proud also, because he had an idea in his mind to deliver some speech on the topic, and he had collected lots of ideas, facts and information about it, and he was full confident that it may work and he could stand any arguments. So he was happy, so that he remained stubborn. वो stubborn हो गया, जिद्दी हो गया, मैं भाग लूँगा, no matter what the end will be. अंत क्या होगा I don't know, but I will take the competition. Now let us move to another paragraph. The boys knew better than to tease Nani. He was a brilliant student and beat everyone hollow in studies, and moreover he was a very kind and helpful boy. Everyone liked him. They also knew that if Nani decided to do something, he would do it, no matter what the odds, even if it was a stammer. Now Nani, other thing is that the boys in the class, they were jealous of him, because Nani was a brilliant student, very good student in the class, and
he beat everyone in his studies. Studies में वो फर्स्ट अव्वल आता था. So everyone they used to get less mark than नानी. So लेकिन नानी क्या था, एक काइंड, हृदय वाला, दयावान और एक हेल्प करने वाला बॉय था, हेल्प करने वाला लड़का, सहयोग करने वाला लड़का. सो सब उसको पसंद था. दे ऑल्सो न्यू दैट, उन लोगों को ये भी मालूम था कि अगर नानी ने एक बार सोच लिया तो उसको पूरा करके ही छोड़ेगा. he had a great determination over his work. He will be doing it anyhow, no matter how much odd will come on his way. जितना भी कठिनाइयाँ आए, अगर नानी ने ठान लिया कोई कुछ करने के लिए तो उसके अंदर में उसको वो पूरा करने में कुछ भी ऑड्स, कोई भी तकलीफ, कोई भी कठिनाई उसको रोक नहीं सकता था. Now let us move to another part. The stammer had always been a cause of irritation to him. Just when he was about to make a point, he would begin stammering dreadfully. He tried tongue twisters and recited difficult passages from books to improve his speech. Often he would be able to speak several sentences without the trace of the stammer, but it would suddenly start, and once it began, it went on, much to his frustration. Very often he couldn't express what he wanted to say. Now here is the situation of sadness of नानी. नानी एक हकलाने वाला लड़का था, and it was the cause that made him irritated. उसको इरिटेट करता था इस बात से. इरिटेट करना, गुस्सा आ जाना, एकदम अपने आप पर क्या होना, गुस्सा आ जाना, अपने आप में जलन होना, दर्द महसूस करना. अरे मुझे हकलाने का आदत है, मैं क्या करूं, मन में एक चिंता आ जाना. Just when he was about to make a point, he would begin stammering dreadfully. कोई भी चीज़ बोलने लगते थे अथवा कोई चीज़ के बारे में वो he wants to clarify the statement. At that time उसका जो हकलाने का आदत था वो बहुत उस पर बुरा रिएक्शन दिखाता था. So it was that statement became unclear to everyone. किसी को समझता नहीं था. समझ भी गया तो it was difficult. Now he tried tongue twisters and recited difficult passages from books to improve his speech. उसने बहुत कोशिश किया. टोंग ट्विस्टर, टोंग को ट्विस्ट करने वाला साधन वो यूज़ किया. उसने डिफ़िकल्ट पैसेजेस मुंह से पढ़ा ताकि उसका हकलाना इम्प्रूव हो, हकलाना बंद हो और उसका जो अपना बोलने का स्पीच हो वो इम्प्रूव हो. Often he would be able to speak several sentences without the trace of the stammer, but it would suddenly start, and once began it went on, much to his frustration. Very often he would express what he wanted. He couldn't express what he wanted to say. Now ये बार बार ये कोशिश करते थे और कभी कभी ये ठीक भी होता था, लेकिन बाद में जाकर फिर वो हकलाना शुरू कर देता था. And it was the cause of frustration to him. उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाता था. अब जब कोई चीज़ हम लोग आदत होता है, कोई चीज़ करते समय अगर वो हम लोग कर नहीं पाते तो हम लोगों को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उस पर. सो इन दिस वे वो कोशिश बहुत करता था, लेकिन थोड़े देर तक वो हकलाना बंद होता था, फिर बाद में वो फिर शुरू हो जाता था. इन दिस वे ही वॉज गेटिंग इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड सो ऑन. दैट वॉज व्हाट नानी वॉज ट्रबलिंग विद. ये हकलाने के कारण अथवा स्टैमरिंग हैबिट के कारण
ये जो पॉइंट बताना चाहता था दूसरे को, अच्छी तरह से समझाना चाहता था, ये नहीं हो पाते थे उससे. So he was also, that was also the reason why he was getting annoyed or why he was getting frustrated. Papa, I have given my name for the elocution competition, he announced to his father that evening at dinner. That's good. ये क्या हो या फीलिंग्स, हम लोग इसको इंटरजेक्शन वर्ड, हम ये पॉजिटिव रिएक्शन ये भी कह सकते हैं. दैट्स गुड. व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक ऑन, आस्क्ड हिज फादर. नाउ यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन जो वो स्पीच में भाग ले रहा था, घर में जाके अपने पापा से कहा, पापा मैं इलोक्यूशन स्पीच कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ. तो पापा ने क्या किया, अरे ऐसा नहीं कहा कि अरे तुम हकलाते हो, कैसे स्पीच में भाग लोगे, ये नहीं कहा. ही वॉज अ गुड फादर. इंस्टेड ही सेड दैट, अरे भाई तुम बहुत अच्छा है ये स्पीच में भाग लेने के लिए, तो कौन सा टॉपिक्स में बात कर रहे हो अथवा कौन सा टॉपिक्स में तुम स्पीच दे रहे हो. ये करके फादर ने उसको पूछा, उसको इनकरेज किया. उसको डिस्करेज करने के बजाय फादर ने उसको क्या दिया, इम्पोर्टेंस दिया और इनकरेज भी किया. सो दिस वाज द पैराग्राफ दैट वी आर लर्निंग इन पार्ट ए. दिस वाज द लास्ट पैराग्राफ. सो डियर स्टूडेंट, एक ये लड़का का अच्छा कहानी है जिसमें हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए ये कि संकल्प डिटर्मिनेशन एक बच्चे में होना चाहिए, ताकि he or she will get success in life. एंड ये डिटर्मिनेशन, ये संकल्प कहीं बाहर नहीं मिलता है, कोई दुकान में नहीं मिलता है, कहीं जाके रोड पे बिखरा हुआ नहीं मिलता है, ये खुद के अंदर में होता है. इट इज़ इनसाइड अस. It is only the matter that you have to show it out. You have to take it out for the work you are doing. कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ ये काम, हाँ बार बार करने के बाद भी वी आर गेटिंग फेल. बट उस टाइम पे हम लोग को क्विट अप नहीं करना है, होपलेस नहीं होना है, क्योंकि एक बार 2 बार 3 बार ट्राई किया आपने, लेकिन फिर भी आप हार रहा है, उससे आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. फिर भी आप लोगों को उसको ट्राई करना बंद नहीं करना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू ट्राई हार्डर एंड हार्डर, द बेस्ट थिंग यू विल अचीव इन लाइफ. डियर स्टूडेंट, दैट वाज द क्लास टुडे, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट टू join the class, do all the activities and submit it through the process that has been announced to all of you by the management of the school. So dear student, we'll have a next part of our story tomorrow in part B. Till then, have a nice time. Don't go out of the room, don't do naughty things. Be active, don't remain passive. You explore the good things, you try to find out new things, because you have a plenty of time to explore this time, which you must not waste it. And don't try to pass the time, utilize the time in a proper way. Thank you everyone, have a nice time.